Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? So I hope you all are doing great. So today we are going to solve a very common but very important DSA problem, which is to reverse an array. Okay. So this question forms the base for the many advanced problem. Okay. So let's understand what the problem is. So basically we just have to reverse an array. For example, here is the array given to us, which is 1, 2, 3, 4 and 5. We have to reverse this one. ठीक है. जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इट विल बिकम द लास्ट एलिमेंट, दिस सेकंड एलिमेंट विल बिकम द सेकंड लास्ट एलिमेंट एंड सो ऑन. ठीक है. जस्ट हम इसे रिवर्स कर देंगे सो इट विल बिकम 5, 4, 3, 2 एंड 1. ठीक है. सिंपली हमें इसको रिवर्स करना है. ओके. सो पहला तरीका क्या है? व्हाट्स द फर्स्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस? We can just take an extra array. Okay, so this is a suppose array given to us. We'll take another array of the same length. For example, here the length is 5. We'll take then another array of length 5. Okay, what we will do, we will just run one loop from the back side. हम इधर से from the very back of this array, last of the array, we will start one loop. हम इधर से एक loop start करेंगे और whatever the element is at this index, हम उसको अपने फाइनल अरे में फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर देंगे लाइक हियर. ठीक है. फिर हम एक इंडेक्स पीछे आए, इधर आए, देन वी विल अगेन प्लेस दिस एलिमेंट एट द सेकेंड पोजीशन. सिमिलरली हियर वी विल प्लेस 3, देन 2 एंड देन 1. ओके. सो दिस वाज द बेसिक अप्रोच विद यूजिंग एन अनदर array. But to be honest, this is very silly approach. ठीक है. We don't need this approach anymore. We can just reverse an array without using extra space. ठीक है. हमें स्पेस को यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. Now let's see कि how to do this without any additional array. See here. Okay. Now see. Here it is our first index, right? And this is our last index. Okay. What we are going to do? We are just going to swap the first index with the last index, the second index with the last second index and so on. ठीक है. हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है हम इसको लास्ट एलिमेंट के स्वैप कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 5, 2, 3, 4 एंड 1. ठीक है. फिर क्या करेंगे? फिर जो ये सेकेंड एलिमेंट है वी विल स्वैप इट विद लास्ट सेकेंड एलिमेंट तो ये बन जाएगा 5, 4, 3, 2 एंड 1. ओके. एंड वी आर सॉर्टेड. हमारा जो अरे है वो रिवर्स हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी दैट हाउ टू स्वैप टू एलिमेंट्स. ओके. सी हियर दिस इज आवर अरे, राइट? एंड वी हैव प्लेस्ड 2 पॉइंटर्स, वन टू बी हियर, अनदर टू बी हियर. ठीक है. जो उन एलिमेंट्स को डिनोट करेगा जो हम स्वैप करने वाले हैं. ओके. ओके. सी हियर in swapping we have to use one additional variable, for example temp. ठीक है. हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत होती है फॉर स्वैपिंग. अब ये temp क्या है? temp is whatever it is num at I. हमने इस 1 को temp में क्या कर दिया? स्टोर कर दिया. अब हम क्या करेंगे? हम जस्ट स्वैप करेंगे. कैसे? कि जो भी nums at I पर है अब उसकी जगह पर आ जाए nums of j. ठीक है. इस पोजीशन पर क्या आ गया? 5. इधर हमारा आ गया 5 और nums at j पे क्या आ जाए? नाउ many of you do will this mistake. Now many of you will do this mistake. What? See here. You will do nums at I. But this is totally wrong. क्यों? क्योंकि nums at I पे तो अब हमारा j वाला एलिमेंट है, राइट? हमने इसको अपडेट करके 5 कर दिया. नाउ अगेन हेयर अगर हम nums at j पे फिर से nums at I को डाल देंगे वो तो फिर इधर 5 पे आ जाएगा तो हमारे nums at I की वैल्यू तो लूज हो जाएगी. इसीलिए हमने इधर nums at I को पहले ही टेम्प में स्टोर कर दिया था. ठीक है. सो दैट इन फ्यूचर हमें इसकी ज़रूरत पड़े. ओके. सो नाउ हेयर इट विल बी नथिंग बट टेम्प. Okay, so this was the simple code for swapping 2 elements. Now see, now let's see the pseudo code that how to implement this reverse logic. Okay, see here. Initially we are having one I pointer, right, which is at 0. ठीक है. ये हमने 0 से शुरू किया है. We are having one j pointer which is starting from nums dot length
-1, ठीक है. दिस इज अ जे पॉइंटर जो कि लास्ट से शुरू हो रहा है. वी विल रन द लूप टिल I is less than j. Okay, and what we are doing, we are just repeating this logic here in this loop, right? हम इस लूप के अंदर अपने एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं. तो ये सेम लॉजिक इधर आ जाएगा. आफ्टर स्वैपिंग वी आर जस्ट इंक्रीमेंटिंग I by 1 एंड डिक्रीमेंटिंग j by 1. ओके, नेक्स्ट आइट्रेशन में जब हमारा ये जो 1 and 5 है, जब ये स्वैप हो जाएंगे तो नेक्स्ट आइट्रेशन में I हमारा 2 पर आ जाएगा एंड j हमारा 4 पर आ जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्रीमेंटेड I एंड आई हैव डिक्रीमेंटेड j एंड देन दिस लूप विल एंड. एंड this was the simple code for the reverse function. Now see, many of you will do a very common mistake. What's that? You will put equals to here, which is common mistake. ठीक है, क्यों? देखो, हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी लूप को तब तक चला रहे हैं जब तक I लेस देन इज इक्वल टू j हो. मतलब कि ये हमारा अरे है, हमारा I भी इधर है एंड हमारा j भी इधर है. Is there any point of swapping 3 with 3? No. There is just an unnecessary iteration. तो हमने इसीलिए इस I को सिर्फ और सिर्फ लेस देन j के लिए चलाया है कि अगर वो इक्वल टू भी हो जाते हैं तो हम उस लूप को ब्रेक कर दें, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्वैपिंग द सेम एलिमेंट विद इटसेल्फ. ठीक है, I और j अगर एक पर ही होंगे तो इट इज ऑब्वियस कि वो एक ही एलिमेंट है, तो उसको खुद से ही स्वैप करने का कोई मतलब नहीं बनता. तो इसलिए मैंने इधर इक्वल टू नहीं लगाया है. तो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक मैनी ऑफ अस विल डू. ओके, तो या that's it for today's video. So if you understood how to reverse an array, make sure to like the video and also subscribe to the channel for more DSA and interview questions. Thank you.